All right. Uh, we have any questions from the previous material which we have discussed last time or before that? No question. Okay. Last time we had started OpenMP and I told you it is directive based APIs and it is a standard, normally compiler directive beefed up with runtime library routines and environment variables. We took up some very simple example of using OpenMP by using two library functions, get thread number and get number of threads. We use these two runtime library functions and we used one compiler directive. The simplest compiler directive was the parallel directive. So we use the parallel directive and we implemented a very simple solution. Here is that in which over here you can see we here is the parallel directive pragma omp parallel. This is a parallel compiler directive parallel. It means run the next block in parallel. Okay. And there we mentioned the number of threads as 4 and a variable TID, local variable TID. All the threads, here is the next block which will run in parallel by all the 4 threads. Each thread gets the thread number in TID, its own local copy. It makes a local copy of TID and prints its TID. Each thread prints its TID, which means if there were 4 threads,
there will be 4 printing of thread IDs, thread number 0, thread number 1, thread number 2, thread number 3. And then we had instruction, if the TID is 0, then print the number of threads. How many threads are there in total? Because this is to be printed just by one processor and not by all threads, we have this condition if TID is 0. So this block will be run only by thread 0. However, this parallel block will be run by all the 4 threads. I told you last time that OpenMP is a higher level of abstraction. It works on the higher level than our POSIX and pthread thing which we learned earlier. In POSIX and pthread, we saw that we have to create threads, we have to join for synchronization, and we have to terminate thread by ourselves, identifying the thread by its number or name. We say, okay, create thread 1, create thread 2, create thread 3. We also may use join to or barrier to combine many threads at one point for synchronization, and then we, in the end, if the thread is not required, we terminate the thread. We did all these things ourselves while writing code using POSIX and pthread in our last lecture. Here we find that OpenMP, being a higher level of language, does all this automatically for us and makes our life easy for programming. We only set parallel we only set parallel, and then we mention this number of threads. It automatically meant that create 4 threads with their own IDs. That's why we could print the ID of each thread. We also mentioned that variable private TID, which meant it's a local copy of a variable which is to be used. And most interesting, after saying parallel directive, we started a block. This is our structured block which will run in parallel after we give the parallel directive. And this is the start of that block. Here's the start of the block. Here's the start of the block. And here is the end of the block. Here's the end of the block. Okay. This is for this if condition, but this block which is to be run in parallel ends here. Very interesting. You will not see any join statement at the end of these threads. You have not seen any barrier or terminate for joining or joining. All that is taken care of by OpenMP. When it looks at that end of this structure block, it does all this for us. So that's a great relief or help of using OpenMP for multi-core system.
Okay. Alright. अब हमने यहाँ पे खत्म किया था. अब हम कहते हैं कि ओके, लेट्स डू लिटिल मोर थिंग्स विद ओपनएमपी. इस सिलसिले में जो पहले हम थोड़ा सा क्लॉजेस पे देखते हैं. मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको जब भी कभी कोड लिखेंगे तो आपका कोड का फॉर्मेट कंपाइलर डायरेक्टिव का ये होगा कि इधर तो आप हैश pragma omp हमेशा कहोगे. इट विल मीन इट इज ए कंपाइलर डायरेक्टिव ऑफ openmp. Then there will be a directive. As we saw, we used parallel in our last example. After directive, there is a clause list. In our last class, we used it for mentioning the number of processors. Today, first we will see what are the various options of this clause list. As I said, clause list is like different variables. Clause list is like different variables, or in a function. Let's say when we have a function call, we have the parameters of the function here. In the same way, for the directive name which we use here, we use some parameters which we call clause list. So let's look at this clause list parameters. Okay. Clause list has two kind of things. One is degree of concurrency. Degree of concurrency means how many cores or threads we will use concurrently. Concurrency, degree of parallelism or degree of concurrency. How many threads we will use in parallel. जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में कहा था 4, हमने कहा अगर क्वाड कोर सिस्टम है, वी वांट टू यूज ऑल द 4 थ्रेड्स, तो वी सेट num_threads. हाँ चल गए. हाँ वो पीछे से यूज किया था, तो ये ऐसा भी बंद किया हुआ जो गैस था, वो के स्पेसिफिक पर रखा हुआ है. अभी पूरी बतानी पड़ेगा कि बंद भी करते हैं. ओके, तो थैंक यू. अभी ये मैं 4 सेकंड छोड़ के मैंने तो पूरी हल कर दी. मुझे लगा है इट्स वेरी हॉट, मगर अच्छा हुआ कि हम कुछ पार्ट हाफ एन आवर भी अपना. हाँ, स्पीड का तो कोई मुश्किल नहीं. थैंक यू सो मच. अब हम इसी क्लास में पढ़ा सकते हैं इसके बाद एक और है ना. हाँ 1 बजे. ओके. अच्छा, तो अब हमने नंबर ऑफ थ्रेड्स कह के वहां पे 4 लिखा था. इट अलाउस कि आप नंबर ऑफ थ्रेड्स कहें, ये आपके कीवर्ड है num_threads, ये आपको कहना है फॉर मेंशनिंग द पैरेललिज्म. इन ब्रैकेट आप डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हैं, जैसे हमने कहा 4, 8, और you can write an expression or a variable which computes a value, and that value will act as a number of threads. So it allows an expression or a direct constant. Direct constant is also a special case of expression. So जब हम ये कहेंगे, it will create that many threads. This is called creating thread. Okay. अब इसमें ज्यादातर क्लॉज में चीजें हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में. After mentioning the number of threads, we mention a lot of things about the data type, as it always happens. What kind of data is there? So we use these terms: shared, private, first private, default shared, default private. And what does each one of them mean? When we say shared, it means, and we say shared and then we mention the variable list, maybe array, matrix, or a single scalar variable. So after saying shared, we mention some variable list. Whatever is in the variable list, it means these are those
variables which will be shared by all the threads in the block. All the threads in the block will share that. जैसे आपने अरे ऐड का हमने कहा था, तो हर थ्रेड लेट से अपने एलिमेंट या अपने पार्टीशन पर जाकर अरे को इस्तेमाल कर रहा था, तो ये अरे अब शेयर्ड है और हर थ्रेड इसको यूज कर रहा है। तो इसमें शेयर्ड में आप फिर उस अरे का नाम लिखेंगे जो आपने यूज करना है। प्राइवेट जैसे मैंने अपने पिछले एग्जांपल में यूज किया कि जब ये थ्रेड हम चाहते हैं कि अपनी एक लोकल कॉपी बनाएं, उसको खाली ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ दैट ब्लॉक वो कॉपी यूज हो, और व्हेन यू गेट आउट ऑफ द ब्लॉक दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। इट्स ऑलवेज ट्रू फॉर लोकल वेरिएबल्स। अगर आप कोई फंक्शन भी रन कर रहे हैं तो उसमें जो लोकल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं फॉर द ब्लॉक, वो ब्लॉक से बाहर निकलने पे वैल्यू लूज हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑल द थ्रेड्स automatically get their private copy of that variable, whatever is listed here. So it's very powerful thing. Then these are this share default share और डिफॉल्ट प्राइवेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक तरीका आप शेयर और प्राइवेट को दोनों को मेंशन करें, और दैट इज द बेस्ट वे कि उनको वहां लिस्ट करें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो रही हो, एरर ना हो रही हो, और हो रही हो तो इसी वक्त पता चल जाए। लेकिन इट अलाउज यू कि आप अगर इनमें से कोई एक को आपने डिफाइन कर दिया, मसलन आपने कहा शेयर्ड और उसकी लिस्ट दे दी, तो आप दूसरे को कह सकते हो डिफॉल्ट प्राइवेट। अगर आपने प्राइवेट की लिस्ट दे दी, आप दूसरे को कह सकते हो डिफॉल्ट शेयर। तो अगर एक डिफाइन कर दिया है तो दूसरे को डिफॉल्ट कह के भी हम कोड लिख सकते हैं, which means anything which is not in that list is the default option. इसमें एक लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा स्ट्रेंज लुकिंग इज ए फर्स्ट प्राइवेट। फर्स्ट प्राइवेट इज आल्सो लाइक ए प्राइवेट। जैसे प्राइवेट एक लोकल कॉपी हर थ्रेड अपनी बनाता है, इसी तरह फर्स्ट प्राइवेट में भी जो लिस्ट में नाम है, हर थ्रेड अपनी एक अलग लोकल कॉपी बनाएगा जो एट द एंड लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा प्राइवेट वेरिएबल है कि जिसमें इनिशियली जब ये अपना वेरिएबल बनाएगा, लोकल वेरिएबल एक थ्रेड, इस केस में इट विल स्टार्ट विद अ वैल्यू which is already there in this variable at the, let's say, at the global level. Let's say ये वेरिएबल ग्लोबल लेवल पर भी मेंशन है। जब आप प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो एक लोकल कॉपी बनेगी, मगर उस लोकल कॉपी की इनिशियल वैल्यू वो होगी जो पहले से ही इस वेरिएबल की ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे मौजूद। ये हैं 4 ऑप्शंस फॉर द डेटा हैंडलिंग। एक ऑप्शन फॉर द मेंशनिंग द डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, और many options for mentioning the what directive is there for our code. Okay, so this is, अब हम let's see, अब थोड़ा सा इसको और एक आध एग्जांपल अब करते हैं। नाउ वी हैव सीन सम मोर डिटेल्स, तो अब हम इसको थोड़ा सी और डिटेल्स देखते हैं। एक चीज यही डायरेक्टिव के बाद जो क्लॉज है, क्लॉज लिस्ट जो है, उसमें अभी तक हमने देखा पैरेललिज्म, उसमें हमने देखा कि डेटा की टाइप, उसी में क्लॉज में एक बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल क्लॉज इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं रिडक्शन।
ओके, क्लॉज में ये एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग क्लॉज है। वो क्या है? रिडक्शन का वर्ड, कीवर्ड, ब्रैकेट में पहले लिखा ऑपरेटर और फिर लिखा वेरिएबल लिस्ट। ऑपरेटर का मतलब है अंडर व्हाट ऑपरेशन ये रिडक्शन होगी, और उसके वेरिएबल का नाम क्या होगा जिसमें ये रिडक्शन होगी। अब सवाल क्या है, व्हाट इज रिडक्शन? हमने अभी तक जितने भी पैरेलल प्रॉब्लम्स किए हैं, हमने उसमें रिडक्शन हमेशा की है। सिर्फ फर्क ये था कि वो रिडक्शन का काम हमें खुद करना पड़ता था। अभी पीछे हमने जब किया तो रिडक्शन से मुराद ये होती है कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, पीछे एक अरे है और उसके हम तमाम एलिमेंट्स को सम करना चाहते थे। हमने उस अरे के 4 पार्ट्स बनाए, क्योंकि हमारे पास क्वाड कोर सिस्टम था, तो हमने 4 थ्रेड्स उसके पैरेलल में रन किए। हर थ्रेड ने अपने पार्टीशन का लोकल सम बनाया। ये हर थ्रेड अपना लोकल सम बनाता है, जो हमने पीछे एग्जांपल की है पॉजिक्स में पी थ्रेड। तो ये हमने प्रॉब्लम को पार्टीशन करते हैं, हर पार्टीशन को एक थ्रेड पैरेलल में सॉल्व करता है, एक लोकल रिजल्ट अपने हिस्से का बनाता है। जैसे इसमें हर एक ने अपना लोकल सम की कॉपी बनाई। एंड में हमने या तो लॉक अनलॉक के अंदर इन लोकल सम्स को ग्रैंड सम में ऐड कर दिया, ताकि ये हमारे जो लोकल रिजल्ट हैं ये सारे इकट्ठे होकर एक फाइनल रिजल्ट बन जाए। ये जो लोकल रिजल्ट्स को इकट्ठा करके टोटल फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है, इसको रिडक्शन कहते हैं। एक्चुअली हमने रिजल्ट को रिड्यूस किया है। रिजल्ट के हमारे कई आंसर थे, उन सबको हमने कंबाइन करके एक ग्रैंड आंसर निकाला। ये काम जो होता है इसको रिडक्शन कहा जाता है। अभी तक हमने ये रिडक्शन का काम पूरी तफसील से खुद किया। हमने हर थ्रेड को एक लोकल कॉपी बनाई, फिर हमने उनको या तो लूप में सारे लोकल सम्स को ऐड किया, या हमने लॉक अनलॉक में हर थ्रेड ने अपने लोकल सम को ग्रैंड सम में डाला। ये काम किया हमने। ये हमें ओपन एमपी comes here for a great help, great help, just by saying reduction in our clause list कि भाई मेरी क्लॉज ये है रिडक्शन, एंड मेंशनिंग ऑपरेशन, जो मेरे इस केस में ऑपरेशन क्या है, सम। यू आर समिंग द लोकल सम, तो सम ऑपरेटर आप यहां डाल दोगे सम। यहां आप वो वेरिएबल जिसके रिजल्ट्स को आप कॉपी भी बनाओगे, लोकल कॉपी, और फिर ग्रैंड सम भी बनाओगे, उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। जैसे इस केस में ये सम है, तो आप यहां सम लिखोगे। हर थ्रेड इन द ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक, हर थ्रेड अपनी इस सम की लोकल कॉपी बनाएगा, उनको ऐड करेगा, आखिर में तमाम लोकल सम्स को ग्रैंड सम में ऐड करके रिजल्ट बना देगा। ये सारे काम आपको नहीं करने, आपका काम था कि आपने रिडक्शन प्लस और सम मेंशन कर किया। अब जो अगला ब्लॉक है, वो ब्लॉक के अंदर ये खुद लोकल कॉपीज बनाएगा। 8 थ्रेड्स हैं लेट्स इस एग्जांपल में, ऑल थ्रेड्स विल मेक ए लोकल कॉपी ऑफ सम and add their local results under this operation of add and make the grand sum. When you reach just the end of this block, इस ब्लॉक में आपने कोई रिडक्शन का कोड नहीं लिखा है। इस ब्लॉक में आपने खाली पार्टीशन को, हर थ्रेड ने अपने पार्टीशन को जो ऐड करना था सिर्फ वो कोड लिखा है। लेकिन जहां पे ये ब्लॉक ऐड होता है वहां पर ओपन एमपी आपके लिए इस जगह ये सारे काम कर देता है। ये तमाम लोकल इंस्टेंसेस को इकट्ठा करता है सब में, और अब सम के अंदर फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रैंड सम मौजूद होता है। और ड्यूरिंग द कोड उसने सम की हर थ्रेड पे एक लोकल कॉपी बनाई थी।
तो आप देखिए कि इसमें इवन वो वाला काम रिडक्शन ऑफ रिजल्ट भी हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। अब रिडक्शन कैन टेक प्लेस फॉर एनीथिंग where associative operation is possible. All the operations which can carry out associative operation वो यहाँ मेंशन किए जा सकते हैं। Add, multiply, subtract, and, or, not exclusive or, bitwise and bitwise, ये ऐसे सारे ऑपरेशन जो एसोसिएटिव ऑपरेशन कर सकते हैं। एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या है? ऐसे ऑपरेशन जिसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी अगर हमें a प्लस बी प्लस सी करना है तो हम अगर a प्लस बी करके c करें या b प्लस सी करके a करें, रिजल्ट विल बी सेम। क्यों? प्लस इज ए एसोसिएटिव ऑपरेशन, इसी तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह सब्ट्रैक्ट, इसी तरह एंड, ये सारे एसोसिएटिव ऑपरेशन। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे थ्रेड्स अगर उनका हम उनको सीक्वेंस करने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो ए सीक्वेंस रन कर रहे हैं, तो अगर वो पहले ये हिस्से का एडिशन हो जाता है और बाद में ये ऐड होता है, या पहले ये ऐड हो जाते हैं फिर ये ऐड होता है, दोनों केस में रिजल्ट हमारा एक ही आएगा। इसलिए ये सारे एसोसिएटिव ऑपरेशंस पे होल्ड करेगा। व्हाट अ पावरफुल इंस्ट्रक्शन, व्हाट अ पावरफुल इंस्ट्रक्शन। अब आप देख रहे हैं हमारे क्रिएटिंग ऑफ थ्रेड्स, हमारे कंबाइनिंग ऑफ द रिजल्ट फॉर द रिडक्शन, हमारे टेलिंग ऑफ लोकल कॉपी एंड शेयर कॉपी, हमारा डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, ये सब हमने मेंशन करना सीख लिया है ओपनएमपी में। ऑल द मेजर थिंग्स वी हैव लर्न। नाउ वी आर रेडी कि अब हम इसकी पहले से ज्यादा पावरफुल एग्जाम्पल रन कर सकते या कोड कर सकते। एंड हियर इज दैट हमारी अब ज्यादा पावरफुल एग्जाम्पल दो पार्ट्स में ब्रेक होगा हमारा रिमेनिंग वर्क, और वो वर्क ये है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हमारे लिए सर अगर लैब में सर एक छोटी सी डेमो हो ना तो फिर हमारे लिए भी आसानी होगी। चलो लैब में डिस्कस करते हैं। अब सर आ गए हैं। जी सर। जी जी, क्या डिस्कस करना है? सर ये कुछ लैब के हवाले से बात कर रहे थे शाहजेब। ओके, क्या लैब के बारे में क्या चीज? शाहजेब डिस्कस कीजिए। जी बताइए। जी शाहजेब। जी सर, वो मैं वैसे ही कह रहा था, मैंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट्स का मतलब एक छोटा सा या समझा दिया जाए ना, फिर हमारे लिए भी आसानी होती है ना वो प्रोजेक्ट करने में। अच्छा, तो सिर्फ वही कह रहा था सर से। हाँ, तो दैट्स व्हाट वी कीप डूइंग। जी हसीब सर। साहब और मैं हर लैब में और हर क्लास में प्रोजेक्ट ही समझाते हैं, मुख्तलिफ जी सर बिल्कुल। लेवल्स और स्टेजेस पर। पहले यहाँ आपको ये कोड दिखा रहे हैं ना, अभी कोड समझाते हैं, पहले उसकी लैंग्वेज अगर ज़रूरत है वो सिखाते हैं, फिर आपको कोड दिखाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये कर रहे हैं। अच्छा, और उसको फिर आपको डिजाइन और कोड लिख के टेस्ट करने के लिए देते हैं, एनवायरनमेंट सिखाते हैं। उस एनवायरनमेंट में भी अगर मसला हो तो एक्चुअल इवन सी लेवल पे कोड रन करके आपको दिखाते हैं। एक पार्ट का दिखाते हैं, फिर दूसरे पार्ट का दिखाते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते तो तीसरे पार्ट का दिखाते हैं।
तो वी आर बेंट अपॉन डूइंग दैट ऑलरेडी। जो आप कह रहे हो, अगर उसमें कोई कसर रह गई है तो वी कैन डू मोर ऑन इट, बट देन यू हैव टू बी लिटिल मोर स्पेसिफिक टू लेट अस नो कि सर अब और क्या इसमें से बता दें तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो जैसे पिछली कई लैब्स में हसीब साहब ने इवन सी और क्यूडा सी कोड भी लिख लिख के हर पार्ट को आपको डेमो करना शुरू कर दिया है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स के इवन क्यूडा सी कोड और सी कोड भी उन्होंने अब आपको लिख के और डेमो किए हैं और रन करके दिखाए हैं। अब उससे आगे अभी हमने सिखाया नहीं है, जी सर बिल्कुल। ना मांगा है आपसे। तो वी आर देयर, यू आर वेलकम। आप बिल्कुल पूछिए और हम ये काम थैंक यू। करेंगे, दैट इज अवर जॉब। ठीक है, चलिए, ओके। अब थैंक यू हम कह सर। रहे हैं कि यार ये इसमें हमने सारे एसेंशियल सीख लिए, वी आर इन ए गुड पोजीशन कि अब हम थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल एक प्रॉब्लम लें और उसको रन करें और देखें कि यार ये सब कुछ जो हमने सीखा है क्या हम इसको नाइसली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा फेवरेट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो हमने सब केसेस में किया है। हमने सी के साथ भी ये काम किया, क्यूडा सी के साथ भी ये काम किया। अब वही एग्जाम्पल, वही कोड अब इस मल्टी कोर में ओपन एमपी से करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह ये सिंपल चीजें जो आपने अभी सीखी हैं वो नाइसली एक आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह मसलों को हल कर देता है ओपन एमपी। अच्छा, और इसमें आपकी ये सारी चीजें आपने जो सीखी हैं, रिडक्शन से क्या फायदा उठाएंगे, पैरेलल डायरेक्टिव से क्या फायदा उठाना है, डिग्री ऑफ कंकरेंसी को कैसे मेंशन करें, डेटा हैंडलिंग को किस तरह किया जाए, ये सब कुछ आपको इस एक एग्जाम्पल में एक जगह मिल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, क्या हम कह रहे हैं कि जो फॉर लूप होता है वो अक्सर एक सीक्वेंशियल लूप होता है। फॉर लूप आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फॉर लूप नॉर्मल में बारी बारी वो उस चीज को कैलकुलेट करता है और फिर लूप बैक करता है, फिर रन करता है, फिर लूप बैक करता है। कोई भी फॉर लूप इस तरह काम करता है। नंबर्स ऐड करने हैं, एक फॉर लूप लिखा और उस वेरिएबल में अरे के नंबर डालते गए और फॉर लूप चलाते गए, ऐड हो गए। मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ भी काम करना है तो फॉर लूप सी में एक सीक्वेंशियल कोड होता है जो बारी बारी चलता है। पैरेलल में अगर फॉर लूप को के मुख्तलिफ हिस्सों को पैरेलल में चला लें तो हमें स्पीड का बेनिफिट मिल सकता है। इसको कहते हैं फॉर लूप की अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग ऑफ फॉर लूप। ठीक है, अच्छा, अब अनफोल्डिंग में अनफोल्डिंग फॉर लूप में ये था, चले हम पेन से लिखते हैं। अनफोल्डिंग फॉर लूप ये था कि अगर एक फॉर आए फ्रॉम 0 to 7, अगर ये फॉर लूप है और हमें कोई अरे के एलिमेंट्स हैं जो हमने सम में ऐड करने हैं, तो हम कहेंगे सम, सम को बाहर 0 कर चुके हैं हम, सम इज इक्वल टू प्लस से ए आई। ये एलिमेंट्स इसके बारी बारी इसमें ऐड हो जाएंगे।
ये हमारा फॉर लूप ऐसा होता है। इसे अनफोल्ड करने का मतलब ये है कि इसने जो सारे काम करने हैं वो हम ओपन करके लिख दें, अनफोल्ड करके। फॉर लूप को खोल के क्या बनेगा, हम कहेंगे यार इस फॉर लूप में ये कह रहा है कि सम पहली दफा करेगा सम इज इक्वल टू प्लस इक्वल A1 सॉरी A0, सबसे पहले A0 ऐड करेगा। अगले लाइन में इसी सम में जो अब है उसमें A1 ऐड करेगा, उससे अगली इंस्ट्रक्शन में A2 है। तो अगर ये सारी इंस्ट्रक्शन जो फॉर लूप में बारी बारी चल रही हैं, इन सब को हम खोल के लिख दें 8 इंस्ट्रक्शन, तो दैट इज अनफोल्डिंग ऑफ अ फॉर लूप। अच्छा, अनफोल्ड का मतलब ये है कि अगर फॉर लूप ऐसा है तो कि डिपेंडेंसी नहीं है उसमें, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि एक थ्रेड, जैसे हम पहले करते रहे, एक थ्रेड ये वाले इंस्ट्रक्शन फॉर लूप की कैरी आउट करे, दूसरा थ्रेड दूसरी इंस्ट्रक्शन करे, तीसरा तीसरी इंस्ट्रक्शन करे, चौथा चौथे इंस्ट्रक्शन। ये काम हमने क्यूडासी में किया, पैरेलल में इस तरह से इस काम को किया हमने। अच्छा, इस केस में क्योंकि हमारे पास थ्रेड्स कम है तो हम एक एक एलिमेंट को अलग नहीं कर पाते। हम अरे अगर हमारे पास है तो उसके पार्टीशन बनाते हैं, और उसको 4 थ्रेड्स हैं तो 4 पार्टीशन बना लेंगे, और हर थ्रेड को फॉर लूप के जो टोटल n इंस्ट्रक्शन है n/4 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 पोर्शन ऑफ फॉर लूप हर एक को दे देंगे। अगर 8 थ्रेड है हमारे पास तो हर एक को n/8 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 टुकड़ा दे देंगे कि भाई तुम ऐड करो। तो हर पार्टीशन को जो फॉर लूप के हिस्से, फॉर लूप को हमने खोला, उसकी जो सारी इंस्ट्रक्शन बनी n, उन सब के हमने पार्टीशन बनाए, लेट से 4 या 8 जितने भी हमारे पास थ्रेड हैं, और हर थ्रेड को फॉर लूप का उतना टुकड़ा दे दिया। पहले को 1/4 दे दिया, दूसरे को नेक्स्ट 4th दे दिया, तीसरे को 3rd 4th दे दिया, और लास्ट को लास्ट 4th दे दिया। ये काम हम इसमें पैरेलल में कर सकते हैं फॉर द फॉर लूप। अब इस काम को करने के लिए हमें कोड क्या लिखना है, हियर इज द कोड कि इंक्लूड कह के ओपनएमपी हेडर में शामिल कर लिया, मेन प्रोग्राम लिखना शुरू किया, उसकी ये हमने बिगिन कोड किया, ये ब्लॉक बिगिन मेन का। यहां हमने वो सारे वेरिएबल जो ग्लोबल लेवल पे हमने डिक्लेयर करने थे वो डिक्लेयर कर दिए। आई को, एन को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ए एन की जगह ए 100 एलिमेंट्स का ए करे, 100 एलिमेंट्स का बी दूसरा अरे। इनकी हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होती बल्कि ai into bi for I from 0 to n-1, यानी हर एक के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और डॉट प्रोडक्ट के वेरिएबल में ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लाई ऐड का काम जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें ये 2 अरे चाहिए। फाइनल रिजल्ट एक स्केलर नंबर होगा जिसमें ये सम होकर आएगा डॉट प्रोडक्ट, उसका नाम हम डीपी भी रख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। यहां पे हमने उसका नाम रिजल्ट रखा है। अच्छा, अब इसका पहला हिस्सा ये आप पहले क्यूडासी में बार बार करते रहे हो कि ये जो ए और बी 2 अरे इस्तेमाल होने हैं, इनमें शुरू में हम डाटा इनिशियलाइज करते हैं। ये हमने बहुत दफा किया है, तो आप यहां भी कर सकते हो कि आप एक फॉर लूप रखो और उन्होंने रैंड इस्तेमाल करके डाटा को फिल कर दो। ये हमने पहले भी किया है, यहां भी आप ये करोगे। इस एग्जांपल में मैंने डाटा उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर लूप से डाटा फिल किया है। ये आपकी मर्जी पर है या आपको जो कहा गया है वो।
रैंड इज ए मोर प्रैक्टिकल एंड कॉमन वे ऑफ फिलिंग अरे, लेकिन कभी आप कोई ज्यादा इजी डाटा को चेक करके अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो ये है। इसके अंदर हमने ये किया है कि ए आई में आई का जो नंबर है वो फिल किया है और बी आई में ट्वाइस ऑफ आई फिल किया है। तो ए में 1 2 3 4 5 6 7 फिल हो गए और बी में 2 4 6 8 10 इवन नंबर, इसमें इवन नंबर और इसमें ऑल नंबर। ये एक तरीका है फिल करने का जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया। आमतौर पे आप रैंड के जरिए से फिल करते रहे। ओके, अब हमने ये अरे दोनों फिल कर दिए जिन पे हमने काम करना। रिजल्ट को भी इनिशियलाइज कर लिया। डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि अकोमोलेट करते हैं तो उसको भी जीरो शुरू में करना जरूरी है, वो कर लिया। अब हम अपने इस कोड पे आ गए। ये देखिए ये सारा कुछ इसमें है। हैश pragma omp, it's a compiler directive of omp. Okay, what is the compiler directive? Parallel for, ये कह रहा है पैरेलल में चलाओ नेक्स्ट फॉर लूप को। तो देयर इज ए कंपाइलर डायरेक्टिव व्हिच सेज पैरेलल फॉर, तो कंपाइलर डायरेक्टिव हो गया। इसके आगे ये नंबर ऑफ थ्रेड्स लिख दिए 4 8 जो भी है। उसके आगे हमने लिख दिया कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज शेयर्ड, यानी ये सारे जो थे ना ए बी और रिजल्ट और ये सब शेयर्ड, सॉरी एवरीथिंग इज शेयर्ड एक्सेप्ट कि प्राइवेट जो है वो आए। ये प्राइवेट है, इसको हमने मेंशन किया, बाकी सारे वेरिएबल शेयर है। ये एक दिलचस्प चीज है जो अभी हमने सीखी थी कि रिडक्शन का क्लॉज में हमने कहा रिडक्शन का हम ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे अंडर प्लस, और इसके लिए हमारा वेरिएबल जो है वो रिजल्ट है। रिजल्ट ये ग्लोबल वेरिएबल है जो जब रिडक्शन क्लॉज रन होगी ब्लॉक में तो इसके हर थ्रेड एक लोकल कॉपी बनाएगा, वहां पर अपने एलिमेंट्स को ऐड करेगा और फिर उन सबको ग्रैंड सम बनाए, ग्रैंड रिजल्ट बनाएगा और ब्लॉक से निकलने से पहले ग्रैंड रिजल्ट बना हुआ है। अब क्या करें, ये देखिए ये वो फॉर लूप है। अब आपने यहाँ तो बता दिया कि पैरेलल फॉर यानी नेक्स्ट फॉर लूप को पैरेलल में चलाना है। आगे आपने वो फॉर लूप लिख दिया। फॉर ये सीक्वेंशियल फॉर लूप है जो आपने लिखा है, इसको पैरेलल करके रन करना चाहते हैं आप, तो ये वो लूप है आपने लिखा फॉर आई फ्रॉम 0 to n आई इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई ए आई विद बी आई, ये मल्टीप्लाई हो गया एंड ऐड इट इनटू द रिजल्ट विच इज डॉट प्रोडक्ट। देखो जब हम ए आई और बी आई को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं किसी वेरिएबल में तो हम डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये डॉट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। ये रिजल्ट लिखने के बजाय आप यहाँ प्लस इक्वल टू लिख सकते हो 12, इससे हमारा ये है सीक्वेंशियली डॉट प्रोडक्ट बनाना फॉर एन एलिमेंट। अब हम कहें यार ये तो सीक्वेंशियल का था, हमें पैरेलल से क्या फायदा हुआ? पैरेलल से ये फायदा हुआ कि जब हमने पैरेलल फॉर कह के आगे नंबर ऑफ थ्रेड्स दिए तो ये फॉर लूप का जो भी कोई साइज था n वो इतने थ्रेड्स में ब्रेक कर गया। इफ देयर आर 4 थ्रेड्स, इस n के 4 हिस्से बन गए, हर क्वार्टर एक थ्रेड को मिल गया और हर थ्रेड ने अपने फॉर के पार्टीशन पर डॉट प्रोडक्ट का काम सीक्वेंशियली किया। हर एक पहले ने पहले n/4 पे, दूसरे ने दूसरे n/4 पे, तीसरे ने तीसरे n/4 पे, और ये काम पैरेलल में हुआ। हर ने अपना पार्टीशन का लूप सीक्वेंशियल है मगर चारों थ्रेड या 8 थ्रेड जो भी हम मेंशन करेंगे वो ये काम पैरेलल में करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट बन गया हर एक का लोकल, लेकिन हमने क्योंकि इस रिजल्ट वेरिएबल के साथ यहाँ पर रिडक्शन भी क्लॉज में मेंशन किया हुआ था तो हर
फॉर ब्लॉक का जो उसने अपना लोकल कॉपी में रिजल्ट के डॉट प्रोडक्ट बनाया, वो सारे रिजल्ट के डॉट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन क्लॉज। और जब हम इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, ये ब्लॉक है हमारा जिससे बाहर निकल रहे हैं ये, तो खुद ब खुद लोकल रिजल्ट्स तमाम थ्रेड्स के रिड्यूस होके प्लस ऑपरेशन के तहत ग्रैंड रिजल्ट एज ए डॉट प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब हम इस ब्लॉक के फौरन बाद वी कैन प्रिंट द रिजल्ट एंड इट विल गिव अस द मास्टर थ्रेड प्रिंट। ये मास्टर थ्रेड में वापस चला गया है पैरेलल से, और मास्टर थ्रेड विल बी प्रिंटिंग द ग्रैंड डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए अब हमने सारी चीजें इसकी इसमें इस्तेमाल कर ली। ओके, इस बात को जब हमने कर लिया, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम इससे नेक्स्ट लेवल के काम, ये हमने दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का काम सीखा और उसके तमाम लवाजमात पूरे किए, रिडक्शन के, इनिशियलाइजेशन के, फॉर लूप को ब्रेक करके पैरेलल में चलाने के, पैरेलल फॉर के जरिए। अब हम इस काम को बढ़ा सकते हैं मैट्रिसेस में भी। अगर वेक्टर में हमने ये ब्रेक करके काम किया है, तो जब हम मैट्रिसेस के काम करें तो वहां भी ब्रेक कर लें। वो कैसे? वो ये है कि अगर हमारी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, आप मैट्रिक्स का फॉर लूप इस टॉप लेफ्ट 1 1 से शुरू होके nn तक जा रहा है, या 0 0 से शुरू होके n-1 n-1 तक जा रहा है, और हम इसके एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं। ठीक, एक तो सिक्वेंशियली ऐड करें कि i और j से 2 रो लें और k में उनके एलिमेंट्स को ऐड करें। एक तरीका ये है कि हम कहें अपने काम को पार्टीशन करें। अच्छा, हमने अरे में भी पार्टीशन किया था, मगर अरे में एक ही डायमेंशन थी, तो पार्टीशनिंग हम सिर्फ एक ही सिंप में कर सकते थे कि अरे की लेंथ को हमने 4 हिस्सों में पार्टीशन कर दिया या 8 हिस्सों में पार्टीशन कर दिया। मैट्रिक्स में हमारी एक से ज्यादा डायमेंशन है, ये रो वाली डायमेंशन है और ये कॉलम वाली डायमेंशन है। इस मैट्रिक्स के काम को हमें जब पार्टीशन करना होगा तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, हम सिर्फ रो में पार्टीशन करें, यानी एक डायमेंशन में पार्टीशन करें और रो वाइज करें। क्या होगा? ये मैट्रिक्स का काम ब्रेक कर जाएगा लेट से 4 हिस्सों में, 4 पार्टीशन बन गए रोज को, कि एक पार्टीशन में फर्ज करो 10 रोज, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10। तो अगर 40 रोज थी और हमारे पास 4 थ्रेड्स थे, तो हम 1/4 ऑफ द रोज उसके हवाले कर दें। कॉलम में क्योंकि हम पार्टीशन नहीं कर रहे, तो वो जे का लूप अपना पूरा चले, सिर्फ आई का जो लूप था इसके 4 हिस्से हम कर दें, 8 हिस्से कर दें, पैरेलल में चलाएं। हर पार्टीशन पैरेलल में काम कर रहा है और अपना फॉर लूप चला रहा है। फॉर लूप जो रो के लिए था उसके हमने पार्टीशन कर दिए, इसको कहते हैं 1D रो वाइज पार्टीशन। एक और तरीका, हम रो में पार्टीशन ना करें, हम कॉलम्स को लेट से 4 टुकड़ों में बांट दें। अब रो वाइज तो हमारा लूप आई लूप तो पूरा चलेगा, लेकिन जे का लूप अपने अपने टुकड़े में चलेगा। ये हो गया 1D कॉलम वाइज पार्टीशन। हम ये भी कर सकते हैं कि हम रो को भी पार्टीशन करें और कॉलम को भी पार्टीशन करें, तो इसमें इस तरह ब्लॉक पार्टीशन हो जाएगा। ये 2D पार्टीशनिंग है, इसको ब्लॉक पार्टीशन कहते हैं। इसका मतलब है मैट्रिक्स के काम को पार्टीशन करने के हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। रो वाइज पार्टीशन कर सकते हैं खाली, कॉलम वाइज कर सकते हैं ओनली, या रो एंड कॉलम वाइज दोनों तरह कर सकते हैं। अच्छा, चलें जी, अब हम ये काम ओपन एमपी से पैरेलल में करना चाहते हैं।
जब ओपन एमपी या पैरेलल हम नहीं करते थे तो हमें ये 3 फॉर लूप लिखने होते थे, आपको याद है सी में ही हमने शुरू में सीख लिया था।